ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं भक्तों से क्षमा याचना करूंगा। मैं आज मंदिर गया था, वहाँ थोड़ा विलंब हो गया मुझे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। यह पहला श्लोक है। मेरे पास हिंदी पुस्तक नहीं है तो मैं इंग्लिश में उसको पढ़ूंगा। श्रीराजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charnarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. King Parikshit said, "My dear Lord, you have elaborately described the dynasties of both the moon god and the sun god, with the exalted and wonderful character of their kings." Purport. At the end of the 9th canto, 12th chapter, Sri Sukdev Goswami summarized the activities of Krishna. He spoke of how Krishna had personally appeared to reduce the burden on earth, how he had manifested his pastimes as a householder, and how soon after his birth he had transferred himself to his Braj Bhumi Leela. Parikshit Maharaj, being naturally a devotee of Krishna, wanted to hear more about Lord Krishna. Therefore, to encourage Sukdev Goswami to continue speaking about Krishna and give further details, he thanked Sukdev Goswami for having described the activities of Krishna in brief. Sukdev Goswami had said, "The Supreme Personality of Godhead Sri Krishna, known as Leela Purushottama, appeared as the son of Vasudeva, but immediately left his father's home and went to Braj Vrindavan to expand his loving relationships with his confidential devotees. In Vrindavan, the Lord killed many demons, and afterwards he returned to Dwarka, where according to Vedic principles he married many wives who were the best of women, begot through them hundreds of sons, and performed sacrifices for his own worship to establish principles of householder life. The Yadu dynasty belonged to the family descending from Soma, the moon god. Although the planetary systems are so arranged that sun comes first before the moon, Parikshit Maharaj gave more respect to the dynasty of moon god, the Somavans, because in the Yadu dynasty descending from moon, Krishna had appeared. There are two different Kshatriyas families of the royal order, one descending from the king There are two different Kshatriyas family of the royal order, one descending from the king moon planet and the other descending from the king sun. When Supreme Personality of Godhead appears, he generally appears in the Kshatriya family because he comes to establish religious principles and the life of righteousness. According to Vedic system, the Kshatriya family is protector of the human race. When the Supreme Personality of Godhead appeared as Lord Ramchandra, he appeared in the Surya Vamsa, the family descending from sun god, and when he appeared as Lord Krishna, he did so in Yadu dynasty or Yadu Vamsa, whose descendant was from moon god. In the 9th canto, 12th chapter of Srimad Bhagavatam, there is a long list of kings of the Yadu Vamsa. All the kings in both the Som Vans and Surya Vans were great and powerful, and Maharaj Parikshit praised them very highly. Raja Nam Chobhyam Vamsya Nam Charitam Paramadbhutam. Nonetheless, he wanted to hear more about Somavansha because that was the dynasty in which Krishna had appeared. The supreme abode of personality of Godhead Krishna is described in Brahma Samhita as the abode of Chintamani.
Chintamani Prakar Sadma Sukalpa Vriksha Surbhir Abhipalayantam. The Vrindavan Dham on this earth is a replica of the Som abode. As stated in Bhagavad Gita, in the spiritual sky there is another eternal nature, transcendental, manifested and unmanifested matter. Transcendental to manifested and unmanifested matter. The manifested world can be seen in the form of many stars and planets such as the sun and the moon. But beyond this is the unmanifested, which is imperceptible to those who are embodied. And beyond this unmanifested matter is the spiritual kingdom, which is described in Bhagavad Gita as supreme and eternal. That kingdom is never annihilated, although material nature is subject to repeated creation and annihilation. That spiritual nature remains as it is eternally. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, that spiritual nature, the spiritual world, is described as Vrindavan, Golok Vrindavan, or Vraj Leela, or Vraj Dham. The elaborate descriptions of the above mentioned shloka in the 9th canto, Jato Gata Priti Grihad, will be found here in the 10th canto. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavasya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitasya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आज हम दसम स्कंध श्रीमद् भागवतम का उसे आरंभ कर रहे हैं। और यह जो श्लोक है जिसमें कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, श्री राजो वाचा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। तो महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से विस्तार से सोमवंश और चंद्रवंश के राजाओं के विषय में पूछ रहे हैं, विशेषकर चंद्रवंश के राजाओं के विषय में जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए। तो ये पर महाराज परीक्षित की उत्सुकता है भगवान श्री कृष्ण और जो यदुवंश है उसके विषय में विस्तार से जानने के लिए, जिसे कि वो सुखदेव गोस्वामी से निवेदन कर रहे हैं उसको विस्तार से सुनाने के लिए। तो यह जो दसम स्कंद है, यह जो है यह भगवान का श्रीमुख है। विशेषकर ऐसा बताया जाता है कि भक्तों को पहले सीधा दसम स्कंद में नहीं जाना चाहिए, परंतु पहले हमें प्रथम स्कंद से प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार से हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान का विग्रह का दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हम चरण कमल का दर्शन करते हैं, उसके बाद चरण कमल, उसके बाद भगवान के जो भगवान के चरण हैं, और उसके बाद धीरे धीरे भगवान का दर्शन करते हुए हम लास्ट में भगवान के श्रीमुख का दर्शन करते हैं। तो यह जो है जो दसम स्कंद है, इसमें भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन हुआ है। और हमें सीधा दसम स्कंद ना पढ़कर हमें अध्ययन करना चाहिए पूर्व स्कंदों को, ताकि हम जो है हमारी चेतना इस अनुकूल हो जाए कि हम जो है दसम स्कंद को समझ सकें, उसको ग्रहण कर सकें। तो वस्तुतः भगवान की लीलाएं जो है वो बहुत मधुर हैं, और इन लीलाओं को हमें आचार्यों के माध्यम से समझना है। जो विशेषकर जो दसम स्कंद है वो यदि हम उसे आचार्य के माध्यम से नहीं समझेंगे तो हम उसका मिस इंटरप्रेट करेंगे, हम उसे गलत समझेंगे। क्योंकि भगवान की जो विशुद्ध लीलाएं हैं उसका रसास्वादन वैसे मुनि करते हैं, वैसे भक्त करते हैं जिनका हृदय जो है वो निर्मल है, जिनका हृदय
समस्त काम वासनाओं से मुक्त हो चुका है। परंतु हमारे समान भक्त के लिए, जो कि एक साधक है, जिसका हृदय में काम वासनाएं हैं, जिसके हृदय में जो षड रिपु से पीड़ित है, तो वैसे भक्तों को, वैसे साधक भक्तों को चाहिए कि हम आचार्यों के माध्यम से जो है श्रीमद् भागवतम को, विशेषकर दसम स्कंद को समझें। और इस प्रकार जब हम आचार्यों के माध्यम से उनके जो तात्पर्य हैं उनके माध्यम से हम समझेंगे, तो हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, जो कि वो लाभ जो एक साधक भक्त को अनिवार्य है, जो साधक भक्त को चाहिए, वो शिक्षा हमें प्राप्त होगी। तो श्रीमद् भागवतम जो है, विशेषकर जो दसम स्कंद है श्रीमद् भागवतम, तो ऐसे कहा गया है कि गलितम फलम, वह जो है वेदों का जो है फल है, और वो पका हुआ फल है। तो जो पका हुआ फल है उसको हम किसी भी उसके हिस्से में यदि हम उसको उसका आस्वादन करेंगे तो हमें वो मीठा लगेगा। और यह जो विशेषकर जो श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद है, यह दसम स्कंद जो है, यह कृष्ण की कथा है और ये अमृत के समान है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आगे आएगा कि गोपियां गोपी गीत में बता रही हैं कि तव कृथामृतम तप्त जीवनम। तो यह जो कृष्ण का ये जो कथा है, कृष्ण कथा है, यह जो है यह अमृत है, तव कथामृतम। और विशेषकर उनके लिए तप्त जीवनम, जो जीव इस संसार में तप रहे हैं, जिनको जो तीन ताप जो है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन तापों से जिनका जीवन जो है वो तपित है, जिनका जीवन इन तापों से झुलस रहा है, जिन तापों से पीड़ित हैं, वैसे जीव के लिए, वैसे बद्ध जीव जब कृष्ण की कथा को श्रवण करते हैं, विशेषकर दसम स्कंद की कथा को आचार्यों के माध्यम से श्रवण करते हैं, तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विभीरितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि घृणन्ति ये भूरिदा जना। तो यह जो ताप है, यह जो है यह मिटता है। और कलमशापहम, यह जो कथा है भगवान श्री कृष्ण का जो कथा है, वो हमारे समस्त कलमशों को, हमारे समस्त पापों को मिटा देने वाला है। और इसलिए भुवि घृणन्ति ये भूरिदा जना, जो महान भक्तगण हैं वो उसे ग्रहण करते हैं और उसका प्रचार विश्व में करते हैं। और ये जो भगवान की इन कथाओं का प्रचार करता है, और वो जो भक्त हैं उनको गोपियां कह रही कि भूरिदा, वो जो है वो बहुत ही महान व्यक्ति है, महान जो व्यक्ति हैं, जो दूसरों का कल्याण हेतु कृष्ण कथा को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से ये कथा हम तक पहुंची है, आई है। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी के जो द्वारा जो बताए गए शिक्षाएं हैं, उसके अनुरूप हमें इस दसम स्कंद को यहाँ हमें श्रवण करना है, उसको समझने का प्रयत्न करना है। तो यहाँ दसम स्कंद के प्रथम श्लोक में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे आप दो जो वंश है, जो एक चंद्र वंश है और एक सोम वंश है, उसके विषय में विस्तार से बताइए। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो सूर्य वंश है, इसमें भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए, और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। चंद्र वंश जो है उसमें यदु, महाराज यदु प्रकट हुए, और महाराज यदु से फिर उसी कुल में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो महाराज परीक्षित जो है वो, उन्हें कृष्ण से विशेष प्रेम है, कृष्ण से उन्हें बहुत लगाव है, क्योंकि जब वो अपने माता के गर्भ में थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने महाराज परीक्षित की रक्षा की थी। और अपने माता के गर्भ में महाराज परीक्षित जो है उन्होंने भगवान के जो दिव्य रूप है उसका दर्शन किया था। और ऐसा कहा जाता है कि महाराज परीक्षित ने जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उसके उपरांत वो जहां भी जाते थे, जिसको भी देखते थे, तो वो कृष्ण को देखने का प्रयास करते थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति होता था उसको वो परीक्षा करके देखते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा कि वो कृष्ण है कि नहीं। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित महान भक्त हैं जो निरंतर कृष्ण भावना भावित रहे। और यहाँ दसम स्कंद में हम देखते हैं कि
महाराज परीक्षित कितने उत्सुक हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए, और इस प्रकार वो सुखदेव गोस्वामी से निवेदन कर रहे हैं कि विस्तार से भगवान श्री कृष्ण की कथा को बताने के लिए। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंध प्रारंभ हो रहा है। इसके पूर्व 9 स्कंध पूरा हो चुका है, और अभी कई दिनों से महाराज परीक्षित जो है उन्होंने कुछ भी खाया नहीं है, उन्होंने विश्राम नहीं किया है, कोई जल भी नहीं लिया है, और वो निरंतर श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से वो भगवान श्री कृष्ण की कथा का अमृत का वो पान कर रहे हैं। और इस प्रकार उन्हें शोक मोह भयावह, जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय का जो, हमारे मन का जो ताप है, शोक मोह जो है, वो सब नष्ट हो जाता है। और ये इस प्रकार का अमृत है कि इतने दिन बीतने के बाद भी सुखदेव महाराज परीक्षित को थकान महसूस नहीं हो रही है, उनको प्यास नहीं लग रही है, क्योंकि वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का रसपान कर रहे हैं। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से निवेदन कर रहे हैं कि इन कथाओं को वो विस्तार से बताएं। तो इतने दिन बीतने के उपरांत उनको कितनी रुचि है भगवान के विषय में विस्तार से जानने के लिए, कितना उनके अंदर आकांक्षा है, कितनी अंदर तीव्र इच्छा है भगवान के लीलाओं को विस्तार से जानने के लिए। तो यह एक महान भक्त का यह जो है यह लक्षण है, एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो यहाँ पर भगवान के 2 महान भक्त जो हैं उनके बीच में ये चर्चा हो रही है। एक जो है सुखदेव गोस्वामी हैं जो भगवान के परमहंस भक्त हैं, और दूसरे परमहंस भक्त जो हैं वो महाराज परीक्षित है। और यथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, तो यह जो है भगवान के विषय को जानना सुनना, यह परमहंस का ही कार्य है। जो परमहंस होते हैं वो भगवान के लीलाओं में विशेष रुचि रखते हैं, और भगवान के लीलाओं का वो निरंतर रसास्वादन करते हैं, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं वो अमृत है। तव कथामृतम, वो भगवान की लीलाएं जो है वो कृष्ण की जो कथा है वो अमृत है। और भागवतम में बताया गया है कि जो भक्तगण होते हैं वो उस अमृत को बहुत उसके अमृत के लिए लालायित रहते हैं, और उस अमृत को वो पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ उसका रसास्वादन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, सताम प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति भृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोशनात् आशु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो यह जो है कपिल देव माता देवहूति को बता रहे हैं कि जो कृष्ण कथा है, जो भगवान कपिल देव जो है वो स्वयं भगवान हैं, जो गर्दम मुनि और देवहूति के माता के यहाँ पर प्रकट हुए, और देवहूति माता जो है यह जानते हुए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो उनसे प्रश्न पूछ रही हैं। और उस संवाद में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। जो सताम का अर्थ है जो भक्तगण है, तो जब भक्तगण आपस में एकत्रित होते हैं तो सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, वो कृष्ण कथा करते हैं, भगवान के जो विशेष लीलाएं हैं उससे उसका रसास्वादन करते हैं। भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, और वो किस प्रकार से भगवान की कथाओं का रसपान करते हैं, तो वो कर्णों से, जो भगवान का जो कथा है, जो अमृत है, इसे हम कानों से इसको ग्रहण करते हैं। और भवन्ति भृत कर्ण रसायना कथा, इस कथा को, यह जो कृष्ण रसायन है, ये जो अमृत है, कृष्ण कथा का अमृत है, उसे हम कानों के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं। और तज्जोशनात् आशु अपवर्ग वर्त्मनि, इस प्रकार जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को श्रवण करता है और श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, और वह जो है उसके हृदय में धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति, उनकी सेवा के प्रति, उनके भक्तों के प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है, रति उत्पन्न होती है, उससे रसास्वादन होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से भक्ति श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे भक्त जो है वह भगवान की भक्ति में विकास करता है। और अपवर्ग वर्त्मनि, वह जो है, यह कथा जो है, यह जीव को इस संसार के जन्म चक्र से मुक्त कराने वाला है।
तो जो भगवान का नाम है, भगवान का नाम रूप गुण लीला, यह जो है ये सभी जो भगवान के तत्व हैं, जो आध्यात्मिक तत्व हैं भगवान का, नाम रूप गुण लीला, ये सारे विषय जो हैं वह जीव को इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि अपवर्ग वर्तमनि, यह जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्तों के संग में आकर कृष्ण कथा का श्रवण करता है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोशनात् आशु अपवर्ग वर्तमनि, वह भक्त जो है, वह साधक भक्त जो है, वह पवर्ग को त्याग कर वो अपवर्ग की तरफ, भगवान के धाम की तरफ वो अग्रसित होता है। तो यहाँ महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि विस्तार से मुझे विशेषकर चंद्रवंश के विषय में बताइए, क्योंकि चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। तो महाराज परीक्षित जो है वो इतने दिन बीतने के उपरांत भी वो कथा को विस्तार से समझना चाहते हैं, और उस कथा चंद्रवंश के वो उस चंद्रवंश को और विस्तार से कहने के लिए कह रहे हैं कि उसमें जो वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि जो उसमें राजा प्रकट हुए वो बहुत प्रतापी राजा थे, तो उन सब के विषय में आप मुझे बताइए। तो जो नवा स्कंद है, नवे स्कंद के अंतिम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं को वो समराइज करते हैं, उसको संक्षिप्त में उसका वर्णन कर देते हैं, और यहाँ पर दसम स्कंद से जो लीलाएं हैं वो विस्तार से प्रारंभ होती है। तो यहाँ हम सुखदेव महाराज परीक्षित के जो उनका जितने आतुर हैं कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए, उसकी आतुरता को हम समझ सकते हैं कि इतने दिन बीतने के बाद भी भूख और प्यास से पीड़ित ना होकर वह जो है वो कृष्ण कथा का बहुत ही हृदय के साथ वो उस अमृत को वो ग्रहण कर रहे हैं, और उस अमृत के ग्रहण करने के फलस्वरूप उनके हृदय में जो है जो कृष्ण कथा को जानने का जो लालसा है वो निरंतर बढ़ रहा है, और वो शारीरिक स्तर पर नहीं है परंतु वो बिल्कुल आध्यात्मिक स्तर पर है। क्योंकि शारीरिक स्तर पर हम जब कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है कई दिनों तक, तो हमें थकान, भूख, प्यास ये महसूस होता है। लेकिन महाराज परीक्षित जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर है, जहां पर कि कृष्ण कथा जो है उनके आत्मा को पोषण कर रहा है। इस प्रकार वो शरीर से जो उत्पन्न है थकान है, भूख प्यास है, उससे वो पीड़ित नहीं हो रहे हैं। तो वास्तव में कृष्ण कथा को सुनने का, कृष्ण कथा को जानने का यही योग्यता है। जिस प्रकार जब व्यक्ति को भूख लगता है, जब कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो वो कुछ भी चीज को खाता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और उसको खाने में बहुत रुचि होती है, और वो उसको जब खाता है तो उसको पूरी तरह से अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति को रुचि नहीं है, उसे भूख नहीं है, और उसे अगर यदि जबरदस्ती खिलाया जाए तो वह जो है उसे ना तो उसका रसपान कर सकता है, ना ही उसको ठीक से डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये एक साधक भक्त की अवस्था है। यदि एक साधक भक्त जो है, जब हमें कृष्ण के बारे में जानने के लिए, कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए यदि हमें विशेष रुचि है, तो हम उस कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और उसे हम उस कथा को अपने हृदय में बिठा लेंगे। उसको हम वो कथा जो है हमारे हृदय में छप जाएगा। लेकिन यदि हमें उस कथा को श्रवण करने का जो है यदि उसका भूख नहीं है, उसके लिए हम लालायित नहीं है, उसके लिए हम आतुर नहीं है, तो वो कथा जो है हमारे हृदय में वो जो जितना परिवर्तन लाना चाहिए, जितना हमें लाभ मिलना चाहिए, उतना हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो चूंकि हम बद्ध जीव हैं, और बद्ध जीव होने के कारण जो है हमारे अंदर इतनी शुद्ध चेतना नहीं है, इसलिए हमें चाहिए कि हम एज ए ऑस्टेरिटी हम उसको तपस्या समझकर कृष्ण कथा को श्रवण करें। क्योंकि हम तपस्या समझकर भी कृष्ण कथा को श्रवण करेंगे तो ये कथा जो है वो हमारे हृदय को जो कल्मश है उसको धीरे धीरे नष्ट करेगा। धीरे धीरे जब हम कथा को निरंतर श्रवण करते रहेंगे, क्योंकि जब हम श्रवण करेंगे और हमारा हृदय का जो कल्मश नष्ट होगा, तो उस
जैसे जैसे हमारा हृदय निर्मल होगा, हमें भगवान के कथा के प्रति रुचि बढ़ती जाएगी। इसलिए एक साधक भक्त को चाहिए कि वो कृष्ण कथा को उसका श्रवण करे। यदि उसे रुचि नहीं है तो उसे उसके उपरांत भी ये समझकर कि ये मेरी तपस्या है कथा को श्रवण करना, और इस प्रकार उस कथा का श्रवण करे। उसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति को जब जॉन्डिस होता है, जो उसको पीलिया हो जाता है, तो उसका जो दवा है, पीलिया का जो दवा है, जॉन्डिस का जो दवा है, वो गन्ने का रस है। तो जब गन्ने का रस को जब हम उसे ग्रहण करते हैं, तो जो व्यक्ति को पीलिया है, जो व्यक्ति उससे पीड़ित है, तो उसको वह कड़वा लगता है, उसको मीठा नहीं लगता है। लेकिन जो भी कि वो कड़वा लगता है, यह आवश्यक है कि वह जो रोगी है वो निरंतर उसको ग्रहण करते रहे, और जैसे जैसे ग्रहण करता जाता है, जैसे जैसे उसके पीलिया जो है वो मिटता जाता है, तो वैसे वैसे उस जो गन्ने का जो रस है उसका वो आस्वादन कर सकता है। तो उसी प्रकार कृष्ण कथा है, श्रीमद् भागवतम है, तो इसको श्रवण करना, इसको पढ़ना, ये कभी कभी एक साधक भक्त के लिए तपस्या प्रतीत होता है। लेकिन जब उसे हम निरंतर उसका रसपान करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय निर्मल होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, और इस प्रकार से हमारी रुचि जो है श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति, धीरे धीरे जो श्रद्धा जो है ये रति में उत्पन्न होगी, भगवान से भगवान को जानने की और इच्छा होगी, उसका हम रसपान ज्यादा कर सकेंगे, और इस प्रकार जो है हम भक्ति में हमारी भक्ति जो है वो भगवान के चरण कमलों के प्रति वो विकसित होगी, हमारी भक्ति जो है वो बढ़ेगी। तो आज जो है मैं इस कथा को थोड़ा जल्दी समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रिपरेशन नहीं था। तो अगले थर्सडे से हम इसको डिटेल में लेंगे और उसको चर्चा भी हम थोड़ा लंबा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।